Dear students, we know that in case of memory reference instruction, the instruction is having three parts. The first part is your address part, it is from 0 to 11. 12 to 14 is opcode part, and 15th bit is used for the mode bit. The mode bit will decide what is the addressing mode of address part, because here in address part there is an address of a operand, and where that particular operand is stored in the memory, that address is known as effective address. Actually, the effective address is an address which is the actual address of operand, and this effective address is find out with the help of mode bit. So today we are discussing different addressing modes, that means how mode will define the effective address. एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करेगा कि जो ऑपरेंड है आपका उस ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस क्या है। तो हम यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स करेंगे। इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एंड बेस एड्रेस मोड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मोड जिसमें ऑपकोड में ही स्पेसिफाई हो कि ऑपरेंड क्या है। फॉर एग्जांपल CMA, CMA इज़ कॉम्प्लीमेंट AC। तो CMA आपका क्या है, ऑपरेशन कोड है, बट ये ऑपरेशन कोड खुद ही बता रहा है कि ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अप्लाई करना है हमने एक्यूमुलेटर में। तो एक ऐसा मोड जिसके अंदर ऑपरेशन जो है वो खुद ही स्पेसिफाई कर दे कि उसका ऑपरेंड कौन है, इस मोड को हम कहते हैं इम्प्लाइड मोड। लाइक CLA, clear AC, CME, complement the extended register, INC, इंक्रीमेंट द एक्यूमुलेटर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आपके रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशंस थे वो सभी आपके इम्प्लाइड मोड में जाएंगे, क्योंकि वो ऑपरेशन या तो एक्यूमुलेटर्स पर है या फिर एक्सटेंडेड रजिस्टर पर। नेक्स्ट मोड इज़ योर इमीडिएट मोड। इन इमीडिएट मोड the operand is given in the instruction, like suppose हमें given है add 200। तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि 200 is the address, but if the mode is immediate mode, that means immediately the operand is available in the instruction. So when we write add 200, then actually the operation is AC is equal to AC plus 200. It means in case of immediate mode, the operand is already available in the instruction. Again, no effective address. It means इन दोनों ही modes में कोई भी effective address नहीं होगा। Next is your direct addressing mode. In case of direct addressing mode, the address part is given inside the instruction, like add 200, then AC is AC plus memory content of 200. It means the effective address of the instruction is 200. Next is indirect mode. In case of indirect mode, the address part contain the address of operand. That means when we write add 200, then actually what we are doing, AC is AC plus memory content of 200। that means 200 पर जो एड्रेस होगा, suppose it is 400, then memory content of 400 is the operand. In this case the effective address is 400. नेक्स्ट इज़ रजिस्टर मोड। नाम से ही क्लियर है, इस केस में ऑपरेंड जो है वो मेमोरी में नहीं स्टोर होगा, वो रजिस्टर में स्टोर होगा। तो व्हेन वी राइट ऐड R1, तो R1 में जो भी वैल्यू है हम लोगों ने यहाँ शो किया कि सपोज R1 रजिस्टर में वैल्यू 100 है, तो ऐड R1 मीन्स AC इज इक्वल टू AC प्लस R1, और R1 में वैल्यू हमारी 100 थी, तो एक्चुअली ऑपरेशन होगा AC इज AC प्लस 100। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड मीन्स आपका जो
रजिस्टर में कंटेंट है वो ऑपरेंड नहीं, वो फिर से एक एड्रेस है। लाइक हमने लिखा ऐड R1 में 100 रखा है, 100 इज़ नॉट द ऑपरेंड, 100 इज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो एक्चुअली ऑपरेशन होगा आपका AC इज़ AC प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ 100। नेक्स्ट इज ऑटो इंक्रीमेंट। Auto increment and auto decrement both are the extension of register indirect mode. That means दोनों ही केसेस में रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट में आफ्टर अप्लाइंग द रजिस्टर indirect the value of the register is incremented, but in case of auto decrement before applying the register indirect the value is decremented. तो हम यहाँ पर देखते हैं ऐड R1 में हमने 100 लिखा, तो AC इज़ AC प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ 100 एज इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट। एडिशन में ऐड तो मेमोरी कंटेंट ऑफ 100 ही होगा, दैट मीन्स रिजल्ट तो वही आएगा जो आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट का था, बट आफ्टर दिस ऑपरेशन द वैल्यू ऑफ R1 इज इंक्रीमेंटेड, दैट मीन्स नाउ द वैल्यू इज 101। ऑटो डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर एडिशन करेगा, दैट मीन्स ऐड R1 में वैल्यू है हमारी 100, तो ऑटो डिक्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ R1, इट इज़ 99, सो ऑपरेशन इज AC प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ 99। नेक्स्ट इज रिलेटिव एड्रेस मोड। इन रिलेटिव एड्रेस मोड हमेशा जो भी एड्रेस पार्ट आपका इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा उसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट ऑफ PC। तो वन वी राइट एट 25, तो एड्रेस पार्ट में हमारा 25 है, PC में वैल्यू है 200, दोनों को ऐड किया तो आंसर 225। तो एक्चुअली ऑपरेशन इज AC प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ 225। नेक्स्ट इज बेस रजिस्टर एड्रेस मोड। In this mode, just like the relative mode, the content of base register is added. तो add 24, BR value is 100. तो effective address is AR plus BR. So we add 24 and 100. It will be 124. तो accumulator is accumulator plus memory content of 124. Same is the index register addressing mode. Now instead of using the base register or PC, we are adding the content of index register. Here it is add 30 and index register content is 200. So effective address is AR plus content of index register, that is 30 plus 200 230. So AC is equal to AC plus memory content of 230. This is all about the addressing mode.